Hello, aspirants. Welcome to AR Pravas Academy. Once again, I welcome you all in this series that is 1000 MCQ series for GKSSB. Today, we are going to discuss the second lecture of this lakes of Jammu and Kashmir. And after this, if there is anything left like miscellaneous portion of this part, that is lakes of Jammu and Kashmir, for that I will be making another short video. But today, we are going to discuss few questions and discuss important facts about these lakes that are. Yesterday, I discussed about the lakes of Kashmir Valley. Today we are going to discuss about the Jammu and the Ladakh region. So let's get started. Keep these points written in your copy and then revise all these points. And by the way, today is the new year. So let's start this with the new vibe and hopefully we're going to have a great year ahead. Let's start. If you are not subscribed, please subscribe to the channel before watching the video. So the first question here on your screen, as you can see, is which lake in Jammu and Kashmir, Jammu division is famously known as the mini Gulmarg of Jammu? There's a lake in Jammu region which is known as Mini Gulmarg of Jammu because of its scenic beauty and tourist rush. So you have to answer which among the following is that lake. So the options are Mansar Lake, Surinsar Lake, Sanasar Lake, and Nandansar Lake. So the right option here would be Surinsar Lake. Sorry, Sanasar Lake. Sorry. Right option is here Sanasar Lake. Sanasar Lake. This lake lies in the district of Ramban. So you have to remember the district. District is Ramban. And this lake is around 120 kilometers from the Jammu. So this is called Mini Gulmarg of Jammu because of its tourism and scenic meadows. So remember this. This is not a natural lake. This is an artificial lake. This is an artificial lake. Artificial lake. This was built around 1980s. So remember this as well. So this is an artificial lake that was built around 1980s by the J&K Tourism. So this is called the Mini Gulmarg of Kashmir. Now moving to the next question. Roughly what percentage of Pangong Tso lies within India? Pangong Tso is a lake in Ladakh region and it's asking about कि उसका कितना region जो है India के अंदर lie करता है. If we talk about this, the answer would be 40%. Pangong Tso is the lake जहाँ के जिसके बीच में से जाती हैं LAC, line of actual control जो है lake के बीच में से गुजरती हैं. तो कुछ इस तरह से 40% जो है इंडिया के इसमें आता है और 60% जो है वो चाइना के अंदर आ जाता है. So remember this fact as well. This is Pangong Tso lake which is the lake that is distributed among 60% is in Chinese territory, while 40% is in Indian territory. So you have to remember this. And LAC passes through this lake. This is 134-kilometer long lake. So sometimes they may ask you this. 134 kilometer is the total length of this lake, and this lake was popularized by Three Idiots movie. Three Idiots movie. As you see, that last scene in that movie was, यहाँ पे उसको लिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं. Which lake is the largest among the 7 lakes of Girgandak? Girgandak in Poonch. So there is a series of lakes in Poonch district which are known as Girgandak. Girgandak, this is a story. The story behind these lakes is that this Girgandak was the ruler at some time of this region, that's Poonch region, and he had some 7 children. Among them was one girl and 6 boys. So on those names, these lakes are named. These are called Girgandak. Girgan is his name was Girgandeo. He was the ruler of that time. So I'm not going there. Let's focus on here. So the question here asking is which among these 7 lakes is the largest lake? So the largest lake here is Nandansar. Nandansar जो है ये इनमें से सबसे बड़ा लेक है. Nandansar is the biggest lake here, जिसको हम लेक ऑफ ब्लिस के नाम से भी जानते हैं. इस नंदनसर को लेक ऑफ ब्लिस BLISS लेक ऑफ ब्लिस के नाम से भी जानते हैं. तो ये आपको याद रखना, ये इनमें से सबसे बड़ा है. ये अप्रोक्सीमेटली आपको 4 किलोमीटर बड़ा दिखेगा, यानी कि इसकी लेंथ और इसकी विड्थ अगर देखेंगे तो अराउंड 1.6 किलोमीटर है. तो ये आपको याद रखना है. दिस इज द लेक दैट इज कॉल्ड एज नंदनसर. सो दीज आर 7 लेक्स एक्चुअली जो कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं आपको, जिनको हम गिरगनदौक के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट, सोकर इन लद्दाख इज नोन एज द व्हाइट लेक ड्यू टू. सोकर जो है दिस इज अ लेक इन लद्दाख, इसको हम व्हाइट लेक बोलते हैं. क्यों बोलते हैं व्हाइट लेक? अगर आप सोकर की मीनिंग देखोगे लद्दाखी में, सोकर का मतलब ही होता है व्हाइट लेक. ठीक है, इसका नाम ही सोकर है. सोकर की मीनिंग ही ट्रांसलेट होती है व्हाइट लेक में. सो इसको व्हाइट लेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, चूंकि ये एक सैलाइन लेक है. सैलाइन मतलब इसका जो वाटर है सॉल्ट है और इसके अराउंड जो है सॉल्ट एफ्लोरेसेंस बनता है. सॉल्ट एफ्लोरेसेंस की वजह से इसकी अपीयरेंस सॉल्टी हो जाती है, इसकी अपीयरेंस जो है व्हाइट हो जाती है. सॉल्ट डिपॉजिट्स यानी कि सॉल्ट एफ्लोरेसेंस जब वहाँ पे हो जाएगा तो ऑब्वियसली सॉल्ट डिपॉजिट्स बनते हैं और सॉल्ट चूंकि व्हाइट होता है उसकी वजह से ये व्हाइट हमें दिखता है, इसलिए इसका नाम भी है
सोकर लेक, इसलिए इसको वाइट बोलते हैं. सो हियर ऑप्शन वुड बी B, that is white efflorescence or salty deposits. Because of this lake is known as white lake. This lake is Sokar is also in Ladakh region. This is also in Ladakh region. So remember this as well. Next question. When was Volu Lake designated as a Ramsar site? I have discussed in this question in last lecture. So you can comment your answers if you have watched that. I have given it. I have given full detail about this. So question number 5, you will be answering in the comment box. Which lake is considered the abode of Shishnag, Lord of Serpents? So here the question is asking about the Shishnag. Which lake is considered the abode of Shishnag, Lord of Serpents? कौन सा लेक ऐसा है जिसको कंसिडर किया जाता है that is the abode of Shishnag, serpents का जो lord होता है. Okay. So answer Mansar, Sanasar, so Moriri. So you have given the options. Now if you talk about this lake, this is called as Mansar Lake. This is called as Mansar Lake. So option B would be the right option. Mansar Lake जो है, this is located in Samba district. This is located in Samba district. You have to remember the districts because ये पूछे जाते हैं. दिस इज लोकेटेड इन सांबा डिस्ट्रिक्ट और माइथोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट है. ट्रेडिशनली ये बिलीव किया जाता है कि इसको हम शीशनाग का अबोर्ड कहते हैं, कि दिस इज कॉल्ड द अबोर्ड ऑफ शीशनाग, जो कि सर्पेंट डेटी है हिंदू के कल्चर में. और यहाँ पे जो है न्यूली वेडेड कपल जो होते हैं वो जाते हैं, वो यहाँ पे परिक्रमास करते हैं न्यूली वेडेड कपल्स, यानी कि वो ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं इस लेक पे. दैट्स कॉल्ड एज मानसर लेक, जो कि कहा जाता है दिस इज द अबोर्ड ऑफ शीशनाग, और ये कहाँ पे है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में. सो रिमेंबर दीज फैक्ट्स. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैली ऑफ 7 लेक्स गिरगनटॉक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये मैंने अभी आपको पढ़ाया कि गिरगनटॉक जो है वैली ऑफ 7 लेक्स या कहाँ पे है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में कर दीजिए फटाफट से, अगर आपको याद है. ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आप कर देंगे. विच लेक इज ऑल्सो नोन एज हरमुख गंगा? कौन से लेक को हम हरमुख गंगा के नाम से जानते हैं? ये मैंने आपको कल भी बोला था. कल हालांकि ऐसा क्वेश्चन शायद वो डायरेक्टली नहीं था, लेकिन बट जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था उस एक क्वेश्चन की, उसमें मैंने कहा था हरमुख गंगा हम किसको बोलते हैं. सो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी गंगाबल. गंगाबल लेक जो है इसको हम हरमुख गंगा के नाम से भी जानते हैं. ये माउंट हरमुख पे आता है. माउंट हरमुख में जाते जाते रास्ते में आता है गंगाबल लेक, और ये डिस्ट्रिक्ट आपका गांधरबल में आता है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल. सो रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. आई एम नॉट गोइंग हियर, इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा. विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स एज ऑफ जुलाई 2025? चूंकि हम लेक्स डिस्कस कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे 4 रामसर साइट्स जो हैं वो इन्हीं लेक्स में आती हैं, तो इसलिए शायद ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है. तो रामसर साइट्स की अगर मैं बात करूँ इंडिया में एट प्रेजेंट अगर हम बात करेंगे, टोटल 96 रामसर साइट्स है. टोटल कितनी रामसर साइट्स है? 96. ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. 96 है टोटल, इसमें चेंज होती रहती है, लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट 96 है. और 96 में सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कौन से स्टेट में है, तो वो है तमिलनाडु स्टेट में. ठीक है, तो तमिलनाडु वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, और इसमें अभी 20 रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में. उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आते हैं जिसमें 10 रामसर साइट्स हैं. सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करूं तो वो आता है सुंदरबंस. सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबंस आती है. सबसे छोटी रामसर साइट की अगर मैं बात करूं तो वो किस स्टेट में आती है? पंजाब में आती है. उसका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे. ठीक है, और एक और चीज़ जो आपको याद रखना है कि रामसर कन्वेंशन जो है ये कब हुई थी? 1972 में. सॉरी, रामसर कन्वेंशन जो है कब हुई थी? 1972 में. और इस रामसर कन्वेंशन में सबसे पहली जो रामसर साइट थी वो भी सुंदरबनी थी. जे.एंड.के में 4 रामसर साइट्स हैं, उनके नाम मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने कल भी वो पढ़ाए थे, उसमें से 2-3 और आज भी 1-2 इस लेक्चर में भी पढ़ेंगे हम. स्टार्ट सपुक सो इज अ फ्रेश वाटर लेक कनेक्टेड टू विच सलाइन लेक? ये जो एक लेक है ये कनेक्टेड है एक सलाइन लेक के साथ. कौन से सलाइन लेक के साथ ये कनेक्टेड है वो आपको बताना है. ठीक है, तो ये जो है ये कनेक्टेड है कौन से लेक के साथ? दिस इज स्टार्ट सपुक. अगर इसकी बात करेंगे तो ये सोकर लेक के साथ कनेक्टेड है, जो कि एक सैलाइन लेक है. अभी हमने ये पढ़ा, इसमें साल्ट डिपॉजिट्स होते हैं, एफ्लोरेसेंस की वजह से इसका जो है नाम पड़ गए हैं सोकर, मतलब वाइट लेक. और ये जो स्टार्ट सपुक है ये एक फ्रेश वाटर लेक है जो जाके इसमें मिल जाते हैं. ये आपको याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सनासर लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक डेवलप्ड इन विच डिकेड? ये जो सनासर लेक है कौन सी सदी में इसको डेवलप किया गया, कौन सी डिकेड में इसको डेवलप किया गया है? ये मैंने आपको अभी पढ़ाया जब हम पहला क्वेश्चन देख रहे थे. तो इसका भी आंसर आप मुझे करके बता देंगे, जो कि आंसर वुड बी पार्ट सी, दैट्स ऑप्शन नंबर सी. सुरिनसर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सुरिनसर लेक की बात अगर हम करेंगे तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है सुरिनसर लेक? दिस इज इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, जो कि जम्मू स्टेट से अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर की दूरी पे है. तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उधमपुर. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेक इज द लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड लेक एंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी। अभी मैंने आपको बताया कि पैंगोंग सो लेक जो है ये सिर्फ 40% इंडिया के कब्जे में है, 60% ये चाइना के कब्जे में है। हालांकि यही सबसे हाई ऑल्टीट्यूड लेक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इंटायरली इंडियन टेरिटरी में नहीं है, इंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी ये नहीं है। तो कौन सा लेक होगा? वोलो लेक, डल लेक तो होगा नहीं। सो मोरेरी ये एक लेक है जो कि लद्दाख रीजन में आता है। सो मोरेरी दिस इज द लेक विच इज एंटायरली विद इन इंडिया, दिस इज द हाई ऑल्टीट्यूड लेक जो एंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी में आता है। सो मोरेरी इज द लेक, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम। सो मोरेरी जो है ये एक रामसार साइट भी है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अभी मैंने आपको बोला था जे में 4 रामसार साइट्स हैं, कल से मैंने चारों में से आ गई कल से। एक तो वल्लो लेक मैंने बोला था, होकर होकरसर जो है वो भी था, और उसके बाद हमने देखा ये सो मोरेरी, सॉरी ये लद्दाख की हैं, तो ये अलग है। जे में 4 अलग हैं, सॉरी जे की 4 अलग है, लद्दाख की 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑफिशियल नेम ऑफ द सो मोरेरी। ये जो सो मोरेरी है इसका ऑफिशियल नेम क्या है? डॉक्यूमेंटेशन पे जो नेम आता है ऑफिशियल नेम वो क्या है? इसका ऑफिशियल नेम आता है ऑप्शन बी, सो मोरेरी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, इसका ऑफिशियल नेम है, और इसी के नाम से ये क्या है, रामसार साइट में मेंशन्ड है, रामसार साइट्स में आता है ये, जो कि लद्दाख की एक रामसार साइट है। लद्दाख में टोटल 2 रामसार साइट्स हैं, इसको भी याद रखना है। गडसर लेक इज़ आल्सो फेमस फॉर गडसर के नाम। गडसर लेक के बारे में कल भी मैंने एक वीडियो जब मैं कल बना रहा था उसमें भी क्वेश्चन आया था और आज भी आया। कल मैंने बोला था गडसर लेक को हम लेक ऑफ फिशेस भी बोलते हैं, फिशेस से भी जुड़ता है ये, और इसके साथ-साथ इसको वैली ऑफ फ्लावर्स लेक भी कहा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स लेक भी कहा जाता है, लेक ऑफ फिशेस भी इसको कहा जाता है, और लेक ऑफ फ्लावर्स भी। और लेक ऑफ ब्लेस तो अभी मैंने आपको बताया था, मैंने पढ़ाया। अभी लेक ऑफ ब्लेस किसको बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट में फटाफट से बता दीजिए। लेक ऑफ ब्लेस जो कि गिरगनडॉक में आपको देखने को मिलेगा, कमेंट कीजिए। व्हिच रिवर स्ट्रीम फ्लोज इनटू द पैंगोंग सो। इनमें से कौन सी रिवर स्ट्रीम है जो फ्लो करती है सीधे कहाँ, पैंगोंग सो में। तो ये जो है ये वाली स्ट्रीम है, इसका नाम क्या है, सॉरी इस स्ट्रीम का नाम है साका स्ट्रीम, चुशुल साका स्ट्रीम भी बोलते हैं इसको। तो ये जो स्ट्रीम है ये डायरेक्टली फ्लो करती है कहाँ तक, पैंगोंग सो लेक तक, ठीक है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। When were Surinsar Mansar lakes originated and designated as Ramsar sites? Okay, Surinsar Mansar lakes जो हैं ये भी रामसार साइट्स हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि सुरिंसर मानसर इज रामसार साइट। सो मोरेरी अभी जो मैंने डिस्कस किया वो भी रामसार साइट है। वलो लेक जो हमने कल से डिस्कस किया वो भी रामसार साइट है। हाईगांव वेटलैंड जो है हमने कल डिस्कस किया वो भी रामसार साइट है। तो इसको रामसार साइट का दर्जा कब मिला था? सो ये जो है हमारा सुरिंसर और मानसर लेक, इनको रामसार साइट्स घोषित किया गया था 8 नवंबर 2005 को। तो 2005 अगर डेट भी याद रखना है तो 8 नवंबर 2005 को इनको रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया था, और ये रामसर साइट्स के अंदर लाए गए थे। विच लेक इज एन इंडोरिक लेक विद नो नेचुरल आउटलेट इन द शिवालिक हिल्स। कौन सा लेक ऐसा है जो कि एक इंडोरिक लेक है जिसका कोई नेचुरल आउटलेट नहीं है? इंडोरिक लेक का मतलब होता है ऐसा लेक जो कि लैंडलॉक्ड होता है और उस दैट हैज नो ड्रेन, आप ऐसे बोल सकते हैं नो ड्रेनेज आउटलेट, नो ड्रेनेज आउटलेट। इसकी जो ड्रेनेज होती है वो भी अंदर ही होती है, यानी कि इसका आउटलेट नहीं होगा कोई। आउटलेट नहीं होने का मतलब ये है कि ये जो लेक होता है क्लोज्ड होता है हर तरफ से, ठीक है? इसका आउटफ्लो बाहर नहीं जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इंडोरिक लेक, ठीक है? तो इनमें से कौन सा इंडोरिक लेक है? वो है आपका सुरिंसर लेक, ठीक है? सुरिंसर लेक जो है दिस इज एन इंडोरिक लेक विद नो नेचुरल आउटलेट, जो कि आपको शिवालिक रीजन में मिल जाता है, शिवालिक हिल्स में मिल जाता है। So, this was the last question. I hope you will revise these facts. And this is from the revision point of view, very important. All these lakes, if you are not subscribed, please subscribe to my channel and also share with your friends. If you need the PDF of this lakes portion, I will be uploading it on my Telegram channel or on my WhatsApp. You can directly message me or you can directly comment PDF and I am going to गिव इट देयर। जिसमें पीडीएफ में सिर्फ आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे बल्कि इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे, जो कि आपको पहले एक्सप्लेनेशंस होगी फिर आप क्वेश्चंस उसी पे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।